سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محترمہ کی سرجری کی۔ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ مائنر نہیں بلکہ میجر سرجری ہوئی ہے اور ان کے قریبی ہاسپٹل میں سرجری کی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا، ان کی وزیر کی طرف سے کہا گیا کہ سرجری جیسے ہی ہوتی ہے وہ اس کے فوری بعد ان کی طرف سے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا گیا۔ جس طرح سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں عید منائی جا رہی تھی، وہ اپنی صوبے کی ذمہ دار ہیں، تو ان کی طرف سے ان معاملات کو دیکھا گیا جس کے احکامات ان کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ گویا سرجری نہ ہوئی، یہ ایک پٹی ہو گئی کہ انہوں نے پٹی کروائی اور اس کے بعد انہوں نے معمولات زندگی شروع کر دی۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، ان کی وزیر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ محترمہ کی میجر سرجری ہوئی ہے، اور پھر جو واقفان حال تھے ان کی طرف سے جو بھی ان کے قریبی تھے انہوں نے یہ دھمانا شروع کر دیا، یہ بتانا شروع کر دیا، یہ دھول اڑانا شروع کر دیکھیں انہوں نے پاکستان میں سرجری کروائی ہے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو اپنے وسائل رکھتا ہے، بے شمار ان کے پاس دولت ہے، کسی بھی دنیا کے بڑے ملک میں جا کے سرجری کروا سکتا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان میں موجود رہتے ہوئے سرجری کروائی ہے اور اپنے ہاسپٹل سے سرجری کروائی گئی ہے۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ نہ مائنر سرجری ہوئی ہے اور نہ ہی میجر سرجری ہوئی ہے، صرف اور صرف ہاسپٹل میں پٹی کروائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک دو دعوے کیے گئے ہیں جن کو دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا، جیسا کہ ان کی وزیر صاحبہ کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا، کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے امور مملکت یا صوبائی امور نمٹانا شروع کر دیے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میجر سرجری ہو؟ اور کہا گیا کہ انہوں نے تو نہیں کہا، ان کے جو واقفان حال ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ گلے کی سرجری ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے صوبائی امور اسی وقت انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو میاں صاحب ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ان کے خاوند ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، وہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم میں جس طرح سے پہلے مصروف تھے آج بھی اسی طرح سے مصروف ہیں، اور اس دوران ایک گھنٹے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلے۔ وہیں پہ ان کا قیام ہے، وہیں پہ ان کا تام ہے، وہیں پہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اگر اتنی میجر سرجری ہوئی ہوتی تو وہ بھی یہاں پہ آتے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آتے، بے شک وہ ایک دن کے لیے آتے یا ایک گھنٹے کے لیے آتے ضرور، لیکن چونکہ میجر سرجری کسی قسم کی سرجری ہوئی ہی نہیں ہے یہاں پہ اس ہاسپٹل میں جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی سرجری نہیں ہوئی۔ تو جو ایک ویلاگ بنایا گیا ہے باہر بیٹھے ہوئے ایک بندے کی طرف سے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، ان کی طرف سے ایک ایک چیز کو یوں کہہ لیجئے کہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اس بندے کی طرف سے بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے پہلے سرجری ہوئی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی سارا کچھ ان کی طرف سے بتایا گیا۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ چونکہ معدے کو چھوٹا کیا گیا تھا اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے، ان کا معدہ بھی کچھ 6-7 سال پہلے چھوٹا کیا گیا تھا، ان کے بھائی کا معدہ بھی چھوٹا کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ دونوں تھوڑے سے سمارٹ ہو گئے، بلکہ زیادہ ہی سمارٹ ہو گئے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں، وہ گلے پر بھی محسوس ہوتے ہیں، جسم کے دیگر اعضاء پر بھی ان کا پڑ جانا کوئی بعید نہیں ہوتا۔ اور ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تھائرائیڈ کا معاملہ تھا، باہر جا کے آپریشن کروایا گیا اور اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کہاں سے حل ہوا؟ یہاں پہ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ آذربائیجان کا دورہ کیا گیا تھا، باکو یہ لوگ گئے تھے، وہاں پہ دراصل آپریشن ہوا اس بندے کی طرف سے کیا، بلکہ بندے کا نام بتا دیتے ہیں، یہ گل صاحب ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز سامنے رکھی ہے، انہوں نے جو دعوے کی ہیں اس کے ساتھ کوئی اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دروغ برگردن راوی ان کی طرف سے جو کہا گیا آپ کے سامنے ہم نے مختصر رکھ دیا، انہوں نے تو تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ اس پر لے لیا، ہم نے آپ کے سامنے مختصر رکھ دیا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹروں کے نام بھی ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل کا نام بھی ہے، اور کس نے کس طرح سے کیا کیا سارا کچھ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ وہاں پہ دراصل سرجری ہوئی تھی اور یہاں پہ آ گئے، اور یہاں پہ پھر اپنے قریبی ہاسپٹل میں جو ان کا اپنا ہی ہاسپٹل ہے وہاں پہ گئے تو پٹی چینج کروانے کے لیے وہاں پہ گئے ہوں گے، وہاں پہ کسی قسم کی مائنر سرجری ہوئی اور نہ ہی میجر سرجری ہوئی ہے۔ یہ سارا ان کی طرف سے ڈرامہ رچایا گیا۔ آپ کے سامنے جو ایک دو دلیلیں رکھی ان کی دی ہوئی، ایک تو ان کے میاں صاحب ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اور دوسرا انہوں نے فوری طور پر اپنے امور بھی نمٹا
आना शुरू कर दिए थे, इसलिए फिर शक हो जाता है कि इनकी सर्जरी नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई है, सिर्फ पट्टी करवाने के लिए वहाँ तशरीफ ले गई, पट्टी करवाई और घर आ गई। तो इस दौरान अमूर ममलकत बिल्कुल उसी तरह से अंजाम दिए जाते रहे और वो बंदा अभी भी, इनका मियाँ अभी भी उनको देखने के लिए नहीं आया। माइनर ऑपरेशन हुआ है या मेजर ऑपरेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, जहाँ से भी हुआ है, जिस भी मर्ज का हुआ है, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। और इसी तरह से हमारी दुआ ये भी है कि इमरान खान की भी अल्लाह ताला बीनाई को बहाल करे और वो भी तंदुरुस्त और तवाना होकर जेल से बाहर आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान की हमने चूंकि बात की है, इस हवाले से इलेक्शन की बात भी कर लेते हैं। पहला हमारा मौजू खत्म हो गया, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अब एक्शन में आ चुका है। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और अलीम खान की पार्टी को, IPP को, उनको दिया गया, क्या दिया गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है। तीनों पार्टियां वहाँ पे, और हो सकता है कि जमात इस्लामी भी वहाँ पे मुतहर्रिक हो, वहाँ पे अपनी कैंपेन चला रहे हैं और उनको मुकम्मल आज़ादी है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे दिया गया है, एक दूसरे के मुकाबले में वो मुहिम अपनी चला रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देखिए कि ये एक तरफ इत्तेहादी हैं, IPP हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून तो सबसे बड़ी पार्टी है, और वहाँ पे अलग अलग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पे ना तो वजीर आजम जा सकते हैं, ना ही सदर जा सकते हैं, ना ही स्पीकर असेंबली जा सकते हैं कौमी असेंबली के, और ना ही वहाँ पे सेनेट के चेयरमैन जा सकते। उन्होंने कहा कि इन पर मुकम्मल पाबंदी है, ये वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे कौन जा सकते हैं, वहाँ पे जिस तरह से पहले मुस्लिम लीग नून के कुछ वज़रा गए हैं उनको जाने की इजाजत है, जिस तरह से तारड़ साहब वहाँ पे इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब भी वहीं पे कई दिनों से मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आबद शेर अली भी वहीं पे पाए जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पे जा चुके हैं, कायरा साहब भी वहीं पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लीडर, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर और अलीम खान भी वहाँ पे मौजूद हैं, वहीं पे पाए जाते हैं। वहाँ पे अगर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा तो वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। पहले वहाँ पे जुनेद अकबर को जाते ही गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी के बाद उनको सरहद पर रखा गया। सरहद कौन सी? गिलगित बल्तिस्तान की सरहद जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, इसको सूबे का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई मामलात में अभी भी उनका तनाज़ा है, क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो अपना हिस्सा कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कश्मीर का हिस्सा है। बहरहाल हमने उसको एक सूबा बना दिया, उसकी सरहद पर खड़ा करके जुनेद अकबर को धक्का दे दिया गया कि वो पाकिस्तान आ गए, उनको सूबा बदर कर दिया गया। और असद कैसर ने वहां पे जाने की कोशिश की तो उनको जहाज पर ही नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि जिस तरह से नाकाबंदी कर ली गई थी एयरपोर्ट की, वो लेट हो गया और जहाज वहां से उड़ गया, वो वहां तक नहीं जा सके। उनकी तरफ जब उनको रोका गया, रोड को पूरी को बंद कर दिया गया एयरपोर्ट जाने वाली, तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, बताया गया कि सिक्योरिटी का मामला है। बाद में पता चला कि इनका असद कैसर साहब ही का मामला था, इनको रोकने के लिए सारा कुछ किया गया था। ये भी वहीं पे रुक गए, ये भी ठहर गए, वहां पे नहीं जा सके। जबकि ख्वाजा साद रफीक, उनको भी इसी तरह से रोका गया, उनको भी सवार नहीं होने दिया गया, वो भी वहां पे मुहिम चलाने के लिए जा रहे थे। मेरा नहीं ख्याल को उनको इस तरह से रोकना मकसूद था, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नून के वज़रा वहां पे मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक भी चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। बहरहाल उनको भी रोका गया, वो कान लपेट कर अपने घर आ गए। उन्हें ट्वीट कर दिया कि ये बेहिसी भी है और गैर जिम्मेदारी भी है, जिस तरह से मुझे रोका गया है। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक लफ्ज भी बोल कर नहीं दिया। यहाँ पे हमने तजिए के तौर पर एक ही बात करनी है, जिस तरह से 2024 के इंतखाबात में हुआ था। 8 फरवरी को 2 इंतखाबात हुए थे, नताइज पूरी दुनिया ने देख ली, और यहाँ भी वही कुछ होने जा रहा है, गिलगित में भी यही कुछ होना है, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो वहाँ भी यही सारा कुछ एक्शन रिप्ले होगा 2024 के इंतखाबात का। यहाँ पे हुकूमत को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, अपनी साख को दुनिया के सामने रखने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, IPP पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपका कोई लीडर वहाँ पे नहीं जा सकता, जबकि तहरीक इंसाफ के लीडरों को पूरी आज़ादी दे दी जाती कि ये वहाँ पे जाएं, कैंपेन करें, क्योंकि नतीजा इन्होंने अपनी मर्जी का बनाना है, ना सिर्फ बनाना है बल्कि अब तक बन भी गया होगा, और वज़ीर आला का भी इंतखाब कर लिया गया होगा कि वज़ीर आला किसको बनाना है। तो फिर ये ड्रामेबाजी की क्या जरूरत है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा, और हुकूमत की इस हवाले से बदनामी हो रही है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया है, तो देखते हैं कि इनकी कोई मानता है या नहीं मानता। बाद में हो सकता है कि जब वहाँ पे वज़ीर आज़म चले जाएं, सदर चले जाएं, या जिनको मना किया गया है सेनेट के चेयरमैन चले जाएं, कौमी असम्बली के स्पीकर चले जाएं, या जिसको भी मना किया गया है, बाद में इलेक्शन कमीशन
वैसे ही विष घोलता फिरे। विष घोलने का मतलब यह है कि ऐसे ही बातें बनाता फिरे। वैसे विष घोलना कहते हैं कि जब शाम को मारा जाता है तो वो उसके बाद भी हिलता रहता है, उस अमल को कहते हैं कि शाम विष घोल रहा है, उसकी जान निकल रही है। भारत इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा अपनी तरफ से आर्डर दिया गया है कि हमने देखें किस तरह से वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला दिया हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है। ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसको एक एक्शन की तरफ से झुटला दिया गया है। गोया उनकी तरफ से कहा गया है कि ख्वाजा आसफ ने जिस तरह से कहा कि उनके मुलाजम ने उन्हें बताया कि उनके गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि मैंने फ़ोन करके मुतल्लिका हुकाम को कहा और उन्होंने मेरी बात मानते हुए वहाँ पे ट्रांसफार्मर बदल दिया, लेकिन लोगों ने इकट्ठे करके उनकी डिमांड पर 80,000 रुपये उनको दिया। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि उसकी रसीद नहीं दी गई। गोया ख्वाजा आसफ को गिला है तो रसीद का गिला है, लेकिन जैसे ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया कि 80,000 रुपये मेरे कहने के बावजूद भी इन लोगों की तरफ से ले लिया गया, तो इस पर सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि रेगुलर मीडिया पर भी बड़ी बड़ी खबरें चलने लगी कि देखें कि एक वजीर का हुक्म है, अगर वजीर के हुक्म के साथ ये होता है कि रिश्वत 80,000 रुपये की ले ली जाती है तो आम बंदे का क्या होगा। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि 80,000 रुपये उनके मुलाजिम के गाँव ने इकट्ठा करके उनको दिया, उन्होंने रसीद नहीं दी, तो इस पर एक एक्शन की तरफ से बयान सामने आता है। उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है, लेकिन मुअत्तल किस वजह से किया गया है, पैसे लेने पर मुअत्तल नहीं किया गया, बल्कि उनका जुर्म कुछ और है। आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि वहां पे 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ये लोग 200 केवी के ट्रांसफार्मर को 100 केवी के साथ बदल रहे थे। वो अगर बदल दिया जाता तो दूसरे लम्हे वो भी जल जाता, उसका भी पटाखा बोल जाता। वो कहते हैं कि मैं वहां पे मौजूद था, मैं वहां पे चला गया, इसलिए मैंने उन लोगों को निकाल दिया। आपके सामने रख देते हैं किस तरह से उनकी तरफ से ख्वाजा आसफ के दावे की तरदीद की गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से लेस्को के खिलाफ ट्वीट के मामले पर 2 लाइन मैन और 1 लाइन सुपरडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। एक्शन फूल नगर, पहले इसको भाई फेरू कहते थे। डिवीजन के मुताबिक लाइन सुपरडेंट मोहम्मद हुसैन, लाइन मैन शौकत और लाइन मैन फलक शेर को मुअत्तल कर दिया गया है। एक्शन फूल नगर के मुताबिक 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जलने पर 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था। गांव के लोगों और ख्वाजा के कोऑर्डिनेटर ने लेस्को के अमले को रोक दिया। एक्शन फूल नगर के मुताबिक उन्होंने चक 27 का खुद विजिट किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। लेस्को के किसी बंदे को कोई पैसा नहीं दिया गया, किसी ने कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि ख्वाजा सब कहते हैं कि 80,000 रुपया इनको दिया गया था। साथ कहा गया कि ख्वाजा आसफ के ट्वीट पर आला सतही इंक्वायरी की जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के नोटिस पर डायरेक्टर सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन टीम इंक्वायरी कर रही है। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा साहब कहते हैं कि 80,000 रुपये मेरे लोगों की तरफ से दिया गया। तो नाजरीन, आप अपने तजर्बे की बिना पर बताइए कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है कि 80,000 रुपया उन लोगों ने इकट्ठा किया और एक बंदे का नाम भी बताया गया कि उसने ये पैसे इकट्ठे किए, और पैसे उन्होंने क्या देगे देने के लिए इकट्ठे किए थे, कोई दलिए की देख देनी थी या कोई खत्म दलवाना था, कोई उर्स था, क्या था, उन्होंने 80,000 रुपया क्यों इकट्ठा किया। एक्सीएन साहब ये तो मानते हैं कि 80,000 रुपया इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए गए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे किसी बंदे ने पैसे नहीं लिए। तो क्या फिर वो ख्वाजा आसफ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। ख्वाजा आसफ को ये पूरी तसल्ली है कि ये पैसे लिए गए थे। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।